welcome to Object Oriented Programming. Now in unit number 4, data files, I am going to explain you new topic about file. Now, like many real life problem handled large volume of data, and in such situation we need to use some devices such as floppy disk, hard disk, CD, DVD to store the data. Okay, so the data is stored in this device using the concept of file. So we can say that a file is collection of related data that is stored in a particular area in the disk or hard disk. Okay, now here I am going to write a program related to file. Now in that program it involve either or both of the following kind of data communication. That communication can be occur in two way. First one is data transfer between the console unit and the program. इट मीन्स हम इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा करते हैं, देन कंसोल यूनिट टू प्रोग्राम में हम फीड करते हैं डेटा. ठीक है. देन सेकेंड वन इज प्रोग्राम में जो डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है दैट कैन बी स्टोर्ड इन फाइल. So second step is data transfer between the program and disk file. Okay, so input device to console, console to program, program to file. Okay, so the IO system, it means input output system of C++ handles file operations which are very much similar to the console input and output operation. It also use streams as interface between the program and the file. हमने input streams, output streams सब देखे हैं. ठीक है. So the stream that supply data to the program is known as input stream, and the stream that receive the data from the program is known as output stream. That is, the input stream extract or read data from the file, and the output stream insert और राइट द डेटा टू द फाइल. ठीक है. जो हमने कंसोल में देखा था उसका रिवर्स है. ओके, क्लियर. लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय अ डायग्राम लाइक दिस. सी, यहाँ पे डिस्क फाइल, फॉर एग्जांपल फाइल में से हमें रीड करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रीम चाहिए? इनपुट स्ट्रीम. ठीक है, प्रोग्राम में इनपुट करने के लिए, और प्रोग्राम में से फाइल में राइट करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रीम चाहिए? आउटपुट स्ट्रीम चाहिए. क्लियर. फाइन. जो हमने कंसोल में देखा था उससे रिवर्स है. नाउ कंसोल में कुछ हमने क्लास हिरार्की देखी थी, सेम वैसे ही फाइल के लिए भी क्लास हिरार्की है. सो हियर आई मेंशन सम क्लासेस फॉर फाइल स्ट्रीम ऑपरेशंस. फाइल के ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो कुछ क्लासेस है. ठीक है. सो इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ C++ contain a set of classes that define the file handling methods that include IF stream. I stream की जगह पे IF, it means input file stream, output file stream, and F stream, it means file stream. Okay, and these classes are derived from the F stream base and from the corresponding O stream, IO stream classes as shown in this diagram. ठीक है. तो यहाँ तक जो हाफ तक था वो हमने ऑलरेडी आगे कर लिया है. ठीक है. नाउ दैट इज ऑफ आईओ स्ट्रीम फाइल के क्लासेस थे. अब हमें एफ स्ट्रीम फाइल के क्लास देखने हैं, राइट. एंड दीज क्लासेस आर डिजाइन टू मैनेज द डिस्क फाइल एंड आर डिक्लेयर इन एफ स्ट्रीम, एंड we must include this file or header file in any program that use the file. Now first class, let me discuss about this file buffer. ठीक है. file FBUF, file BUF. Now its purpose is to set the file buffer to read and write. It contain constant used in open file stream classes, open functions of file stream classes. ठीक है. open functions में जितने भी constant यूज करते हैं that store in this buffer, and it also contain close functions and open functions as member. now फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो उसको एज अ मेंबर वो स्टोर करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्लास इज F stream base class, this class.
that is derived from iOS class. ठीक है, so it provide operations common to the file stream, like it serve as a base class from this fstream class, ifstream class and ofstream class. ठीक है, fstream class पे से ये तीन क्लास derived हुए हैं. ठीक है, and it contain open and close functions. फाइल को ओपन करने का फंक्शन है और फाइल को क्लोज करने का जो फंक्शन है वो इंक्लूडेड है इसमें. देन fstream बेस क्लास पे से derived होता है ifstream क्लास, this one. ठीक है, and it provide input operations. It contain the open function with default input mode, and it inherit the functions getLine function, read function, seekg function and telg functions from iStream class. Now हमने get और getLine फंक्शन देख लिए हैं, read, seekg and telg functions जो बाकी हैं. ठीक है, now next class is ofstream class, that is derived from fstream base class, and it provide output operations, and it contain open function with default output mode. It inherit put function, seekp function, telp function and write function. हमने पुट फंक्शन ऑलरेडी देख लिया है, बाकी के फंक्शन बाकी है ofstream क्लास के. ठीक है, एंड द लास्ट क्लास इज fstream class, and this class provides support for simultaneous input and output operations. It contained open function with default input mode, and it inherit all the functions from the iStream and ofstream class through iOStream. लाइक यहाँ पे iStream और ofstream क्लास के सारे फंक्शंस जो है वो इनहेरिट करता है. ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने इस फंक्शंस देखे वो सारे फंक्शंस. ओके, क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस हियरार्की ऑफ क्लासेस, फाइल क्लासेस. ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू ओपन अ फाइल and how to close a file. Now let me explain first how to open a file through a program. Now if we want to use the disk file, then we need to decide the following things about the file and its intended use. First of all, if we want to use the file, then we have to find a suitable name for file. Then type, टेक्स्ट फाइल है, C++ की फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल फाइल है. देन उनका पर्पस, ठीक है, हम वाई वी नीड दिस फाइल. ओके, एंड ओपनिंग मेथड, फाइल को हम प्रोग्राम थ्रू ओपन कर रहे हैं तो उसकी ओपनिंग मेथड कौन सी है वो हमें डिसाइड करना होगा. सो द फाइल नेम इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर and that make up a valid file name for operating system. It may contain two parts. First one is name, file name, and second one is extension, like input जो है file name है and .txt जो है वो extension है. Okay, now for opening a file, first create a file stream and then link it to the file name. पहले हमें file stream मतलब in iStream, मतलब हमें ifstream और ofstream, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दोनों में से एक डिफाइन करना पड़ेगा एंड दैट लिंक टू अ पर्टिकुलर फाइल नेम. ओके, अ फाइल स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड यूजिंग द क्लास ifstream, ofstream and fstream that are contained in the header file fstream. ठीक है, अगर हम फाइल का प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो हमें कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी? fstream. Now which class is going to be used, that depend upon the purpose. It means why we are creating that program, that is the purpose, and whether we want to read the data from the file or write data into it. ठीक है, वो purpose कौन सा है वो हमें find करना है. So from that a file can be opened in two ways. First one is using the constructor functions of the file class of the class, and second using the member function open. कौन सा function है? Open of the class. ठीक है, so first method is useful when we use only one file in the stream, and the second method is used when we want to manage
मल्टीपल फाइल यूजिंग वन स्ट्रीम। ठीक है, हमें वन फाइल ही वन स्ट्रीम से हैंडल करनी है, तो फर्स्ट मेथड कंस्ट्रक्टर वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मेथड, when we want to manage multiple file using one stream, then we can use open function. ठीक है, now let me explain first step, that is opening file using constructor. Now we know that a constructor is used to initialize an object, right? While the object is created, then constructor is called. Okay, so here file name is used to initialize the file stream object, particular file stream class के object को initialize करने के लिए यूज होता है। नाउ कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू मैनेज द स्ट्रीम यूजिंग एप्रोप्रिएट क्लास, पर्टिकुलर क्लास का फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। And that is to say the class OFStream is used to create output stream and class IFStream is used to create the input stream. ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम किसके लिए यूज होगा? फाइल में राइट करने के लिए, और इनपुट स्ट्रीम फाइल में से रीड करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो कौन सा पर्पस है उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। And the second one is initialize the file object with the desired file name. वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइल नेम के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे अगर हम रिजल्ट फाइल नेम दे रहे हैं तो हमें पहले OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मतलब फाइल को हमने ओपन की है OF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नेम इज एफ आउट, दैट इज यूजर डिफाइंड, एंड ब्रैकेट में हमें क्या देना है? फाइल का नाम। कि रिजल्ट फाइल को हमें ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। सो अगर हम OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम डेटा राइट कर रहे हैं फाइल में, और अगर IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो फाइल में से रीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इट मीन्स हम डेटा को इसमें राइट कर रहे हैं रिजल्ट फाइल में। इट मीन्स क्या है? रिजल्ट फाइल में हम एफ आउट ऑब्जेक्ट थ्रू राइट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने फाइल राइट मोड में ओपन की है। क्लियर? एंड इफ अगर हमने IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नेम फॉर एग्जांपल एफ इन, और फाइल नेम क्या दिया? डेटा। इट्स मीन डेटा नेम्ड फाइल को हम रीडिंग पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ opening file using open. Now open function can be used to open multiple files that use the same stream object. For example, we want to process a set of files sequentially. In such cases, we may create a single stream object and use it to open each file in turn. Like syntax है, पहले हमें file stream क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लाइक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, एफ इन एफ आउट कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, देन हमें क्या मेंशन करना है? ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम। ओके, देन हमें फाइल को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सो क्लोज फंक्शन है यहाँ पे फाइल को क्लोज करने के लिए, एंड इट डिस्कनेक्ट द फाइल फ्रॉम द आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम। जैसे कि हमने कोई भी फाइल किसी भी मोड में ओपन की हो, रीडिंग और राइटिंग, तो हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग क्लोज फंक्शन। ठीक है, सिंटैक्स है, जो ऑब्जेक्ट से हमने फाइल को ओपन की है वही ऑब्जेक्ट डॉट हमें क्या लिखना है? क्लोज, ब्रैकेट में कुछ नहीं, वो ऑब्जेक्ट जिसको फाइल नेम असाइन की है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ना अगर हम ओपन फंक्शन से फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा ओपन फंक्शन में। लाइक उसका सिंटैक्स है फाइल नेम एंड देन मोड। सो अगर हमने स्ट्रीम क्लास का फॉर एग्जांपल हमने OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, और IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने F स्ट्रीम में क्लास बनाया है तो हम पता नहीं चलेगा हम राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं या रीडिंग मोड में, तो यहाँ पे तब मोड स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, इफ आई राइट मोड में iOS, then scope resolution operator and then in, then
istream function meaning open for reading only. And if I write iOS out scope resolution ऑपरेटर के साथ, तो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, राइटिंग ऑनली के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अगर हमने सेकंड पैरामीटर में iOS app लिखा, इट मीन्स हम फाइल को अपेंड कर रहे हैं. फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम जो कर्सर को एंड ऑफ द फाइल लेके जा रहे हैं. इट मीन्स वी आर अपेंडिंग द फाइल. देन इफ आई राइट ATE, ठीक है, ATE it means go to end of the file on opening. ठीक है, that is same as append. Now next one is binary. अगर ये मेंशन करेंगे तो फाइल जो है वो बाइनरी फॉर्म में बनेगी. Then in is used for reading only. Then no create. It means अगर हमने यहाँ पे ये no create मोड स्पेसिफाई किया होगा, then ओपन फेल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं होगी तो फाइल ओपन ही नहीं होगी. ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट नहीं होगी. ओके. नो रिप्लेस मीन्स अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, रिप्लेस नहीं होगी. देन आउट मीन्स फाइल ओपन फॉर राइटिंग मोड. एंड ट्रंक मीन्स डिलीट द ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ इट एग्जिस्ट एंड देन ओपन. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल फाइल मोड. इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ टू डिटेक्ट एंड ऑफ द फाइल. लाइक see, detecting the end of the file condition is necessary for preventing any further attempt to read data from the file. Function है EOF, end of file, that is a member function of iOS class, and it return non-zero value if the end of the file condition is encounter. एंड अगर एंड ऑफ द फाइल आ गई तो वो क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो. लाइक हम ऐसे कंडीशन में रख सकते हैं, लाइक फाइल ऑब्जेक्ट डॉट एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एंड नहीं आया है. ठीक है, तब तक हमें फाइल को रीड करना है. क्लियर? सो ऐसे हम एंड ऑफ द फाइल डिटेक्ट कर सकते हैं. फाइन, होप यू अंडरस्टैंड टुडे. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन टेल मी. थैंक यू.